ابھی آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی وہاڑی آمد کمشنر ڈپٹی کمشنر RPO ملتان DC وہاڑی نے استقبال کیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب MNA طاہر اقبال چودھری کے گھر گئے۔ طاہر اقبال کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت بھی کیا اور بلندی درجات کے لیے دعا بھی کی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے حافظ صالح محمد سے۔ حافظ صالح، بتائے گا ان کے دورے میں کیا کیا پلان شیڈول ہے؟ جی بالکل، آج وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے وہاڑی کا دورہ کیا ہے اور خاص طور پر MNA طاہر اقبال چودھری ان کی والدہ کی وفات پر جو ہے وہ آج تعزیت بھی کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی بلندی درجات کے لیے ان کے گھر جا کر جو ہے وہ دعا بھی کی ہے۔ اور اسی موقع پر جو ہے وہ MPA رائے ظہور کھل اور جا سلطان بندیشہ اور دیگر جو ہے PTI کے پارلیمانی جتنے بھی لوگ تھے وہ وہاں پہ موجود تھے، جبکہ وہاڑی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدور اور اس کے ساتھ ساتھ انجمن تاجران کے وفود وہ لوگ بھی شامل تھے، اور ان کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو وہاڑی کے حوالے سے جو ہے وہ DHQ کے حوالے سے بات بھی کی ہے، اور ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ وہاڑی کو جو اس وقت ترقیاتی کام رکے ہوئے ہیں اس حوالے سے ان کو بھی جاری کیا جانا چاہیے، کیونکہ حال ہی میں جو ضلع چیئرمین جو بحال ہوئے ہیں اس حوالے سے ان کو بھی فنڈ جاری کیے جائیں تاکہ جو ترقیاتی کام ہے ان کو جاری رکھا جا سکے۔ ترقیاتی کاموں کو جاری رکھا جا سکے۔ حافظ صالح محمد، آپ کا شکریہ۔ ترقیاتی منصوبوں کی بات کریں، پنجاب میں سڑکوں کی تعمیر پر 7 ارب 27 کروڑ کی ہیرا پھیری کا انکشاف ہوا ہے۔ ایڈیٹر جنرل آف پاکستان نے 2019-20 کے دوران محکمہ مواصلات نے بے ضابطگیوں پر رپورٹ حکومت کو پیش کر دی ہے۔ رپورٹ میں سڑکوں کی تعمیر میں خریداری پر 1 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیوں، ٹھیکیداروں کو 1 ارب 77 کروڑ کی اضافی ادائیگیوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ پنجاب میں سڑکوں کی تعمیر پر 7 ارب 27 کروڑ کی بے ضابطگیوں کا انکشاف سامنے آیا۔ ایڈیٹر جنرل 2019-20 میں محکمہ مواصلات نے بے ضابطگیوں پر رپورٹ کی اور سڑکوں کی تعمیر میں 1 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیاں بھی سامنے آئی ہیں۔ ٹھیکیداروں کو 1 ارب 77 کروڑ روپے اضافی ادائیگیوں کی نشاندہی کی گئی، جبکہ محکمے نے 34 کروڑ روپے کے غیر ضروری اخراجات بھی کیے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایڈیٹر جنرل نے محکمہ مواصلات پر 3 ارب روپے کی ریکوری بھی ڈالی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رام میں، علی سے مزید اپڈیٹ لیتے ہیں۔ علی، اس بارے میں بتائے گا؟ جی بالکل، یہ پورے پنجاب میں جو سڑکوں کی تعمیر کا کام ہے وہ کیونکہ محکمہ مواصلات و تعمیرات پہ ہوتا ہے، تو اس پر آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اپنی ایک رپورٹ مالی سال 2019-20 کے حوالے سے تیار کی ہے۔ اب اس رپورٹ میں انکشافات یہ کیے گئے کہ 7 ارب روپے کی مالی بے-ضابطگیاں وہ صرف محکمہ مواصلات و تعمیرات میں پکڑی گئی ہیں، اور اس میں فراڈ بھی ہے، irregularities بھی ہیں اور انڈیو بینیفٹس ہوتے ہیں جو کہ غیر ضروری اخراجات جو ادارے کرتے ہیں وہ انہوں نے کیے، لیکن اس کا ریکارڈ جو ہے وہ آڈیٹر جنرل پاکستان کو سبمٹ نہیں کیا گیا۔ اب اس میں جنوبی پنجاب کے بھی اضلاع شامل ہیں، جس میں بھاول نگر اور خانیوال جو ہے وہ سر فہرست ہیں کہ وہاں پر جو متعلقہ آفیسر تھے انہوں نے بہت زیادہ مالی بے ضابطگیاں اس کے اندر کی۔ اب اس پر رپورٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت کو پیش کی گئی اور اس میں بتایا گیا ہے کہ 1 ارب روپے سے زائد کی ادائیگیاں جو ہے وہ ٹھیکیداروں کو کی گئی اور 1 ارب سے زائد کی پروکیورمنٹ جو ہے وہ منظوری کے بغیر کی گئی۔ اب اس پر کیونکہ متعلقہ محکمے نے اس پر جواب بھی دینا تھا، تو آڈیٹر جنرل پاکستان نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ جو محکمہ مواصلات و تعمیرات کی طرف سے جواب دیا گیا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ اس پر اب آڈٹ پر لگ چکے ہیں، تو اب آڈٹ پر سیٹل کرنے کی کوشش بھی کی گئی پنجاب اسمبلی میں، جب کیونکہ اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں محکموں سے جواب طلب کیا جاتا ہے، وہ جواب انہوں نے پراپر طریقے سے نہیں جمع کروایا، اس پر آڈٹ پیرا بنا کر اب حکومت سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ متعلقہ آفیسر کے خلاف اب قانونی کارروائی کی جائے اور جو اماؤنٹ 3 ارب روپے کی ریکوریبل ہے اس کو فوری طور پر ریکور کیا جائے۔ اب اس میں سڑکوں کی تعمیر کے منصوبے ہوتے ہیں اور سرکاری عمارتوں کی تعمیر ہوتی ہے جس پر محکمہ مواصلات و تعمیرات نے کام کرنا ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ مالی بے ضابطگیاں پکڑی گئی۔ اب اس پر آڈیٹر جنرل پاکستان نے پنجاب سے ریکویسٹ کی کہ متعلقہ آفیسر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی اب کی جائے۔ جی، قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ علی رام، شکریہ۔ دوسری جانب میئر بہاولپور نے روہی نیوز کی خبر پر ایکشن لیا ہے۔ ماڈل ٹاؤن نے کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقے میں گڑا پڑ گیا تھا جس پر یہ ایکشن لیا گیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں محمود ظہیر۔ جی، روہی خبر دے تو اس پر ایکشن فوری ہوتا ہے۔ کل ہم نے خبر دی کہ بہاولپور میں کراؤن فیلئر ہوا ہے اور سڑک جو ہے وہ کنٹونمنٹ کے علاقہ میں بیٹھ گئی ہے، 10 فٹ سے زیادہ بڑا گڑا پڑ گیا ہے۔ میئر بہاولپور نے فوری طور پر نوٹس لیا ہے، یہاں پر رئیس عمران صاحب کو بھیجا، اس حوالے سے آفیسر ہے۔ کیا بتایا گیا آپ کو، کیا کہا گیا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ میئر صاحب نے روہی کی خبر پر ایکشن لیا؟ سر بالکل ایسے ہی آپ نے انٹیمیٹ کیا تھا، تو میئر صاحب نے رات ہی جو ہے وزٹ کیا اس کو
और अभी हमें भेजा है ताकि इसका जायजा लेके एस्टिमेट बना के फौरी तौर पर रेक्टिफिकेशन कराई जा सके इसकी। तो इंशाल्लाह ये फौरन हम इसकी रेक्टिफिकेशन कराने लगे हैं। फौरन करवाने लगे हैं और इसके अलावा रेस्क्यू को बुला के यहाँ पर स्ट्रिप वगैरह भी लगा दी गई है ताकि कोई बड़ा हादसा का ये मामला सबब ना बने, क्योंकि कल ये हमने दिखाया था आपको कि ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर जारी थी, किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता था। रेस्क्यू एहलकार भी मौके में मौजूद हैं, दीगर अफसरान भी पहुंचे हुए हैं। बहरहाल रोही ने अपना फर्ज अदा किया और शहरी यहाँ पर इस वक्त महफूज हैं और इस जगह को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाएगा। गड़े को पुर नहीं किया जा रहा। महमूद जहीर, आपका शुक्रिया। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार खानेवाल पहुंच गए हैं। वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर लाहौर मोड़ ग्राउंड में उतर गया। एडिशनल आईजी कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल अवान ने इस्तकबाल किया है, जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मरहूम एमपीए निशात डाहा के घर आमद। वज़ीर आला पंजाब ने मरहूम एमपीए निशात डाहा के लवाहिकीन से ताज़ियत की है। वज़ीर आला के मशीर अली अब्बास शाह भी उनके हमरा थे। आपको बता रही हैं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खानेवाल पहुंच गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं ताज़ा तरीन नदीम मुगल से। नदीम, अपडेट करिएगा। नदीम से राब्ता दोबारा बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बता रहे हैं नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार खानेवाल पहुंच गए हैं। वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर लाहौर मोड़ ग्राउंड में उतर गया, जबकि एडिशनल आईजी कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल अवान ने उनका इस्तकबाल किया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मरहूम एमपीए निशात डाहा के घर आमद है, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने मरहूम एमपीए निशात डाहा के लवाहिकीन से ताज़ियत भी की है। वज़ीर आला के मशीर अली अब्बास शाह भी इस मौके पर उनके हमरा थे। आपको आगाह कर रहे हैं नाज़रीन, वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर लाहौर मोड़ ग्राउंड खानेवाल में उतर चुका है। आगे बढ़े और कुछ बात करें बढ़ती महंगाई की। ज़रूरी मुल्क पाकिस्तान में ट्रैक्टर्स की कीमतों को पर लगा है। ट्रैक्टर्स की बुकिंग प्राइस पर भी ओवन वसूल किया जाने लगा है। ट्रैक्टर सेल्स का कहना है कि कीमतें बढ़ने से काश्तकार खास से परेशान हो चुके हैं। रजा मलिक से बात करेंगे। रजा बताएगा, काश्तकारों को तो शदीद दुश्वारी का सामना होगा इस पर। ज़रूरी मुल्क होने के दावेदार पाकिस्तान में भी सूरत हाल ये है कि जो ज़रूरी मशीनरी है, जो बुनियाद है खेतों में इस्तेमाल होने के लिए ट्रैक्टर, उसकी कीमतों में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और ट्रैक्टरों की डिलीवरी भी गाड़ियों की तरह, कारों की तरह जो है वो ताखीर से होना शुरू हो गई है। बात करें मैसी ट्रैक्टर की तो 4 महीने बाद जो है उसकी डिलीवरी है और इस वक्त सुन रहा है कि ओपन मार्केट में इस ट्रैक्टर पर जो ओन है वो 2.5 से 3 लाख रुपए वसूल किया जा रहा है, जबकि जो दूसरे ट्रैक्टर्स हैं, फील्ड ट्रैक्टर्स जो है, उनकी कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है और उन पर भी 50,000 से 1 लाख रुपए तक जो है वो ऑन लिया जा रहा है। ट्रैक्टर्स जो हैं उनकी डिलीवरी में 4 माह से 6 माह का वक्त जो है वो लिया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है जी, क्या सूरत हाल है ट्रैक्टर्स की, कितनी कीमतें हैं और कीमतें कब बढ़ी हैं और इस वक्त उनकी दस्तयाब होने की क्या सूरत हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम भजन, ट्रैक्टर जरा रेट चढ़िया है, इन्हें 1,07,000 रुपया रेट कंपनी ने बढ़ाया है। गवर्नमेंट इन्हें को आदि रहेगी कि रेट ना चढ़ाओ। कंपनी है कि महंगाई है, सादा घर पूरा नहीं थी ना, असा ट्रैक्टर ने रेट चढ़ाने, कंपनी ने रेट चढ़ा दी हुण 2 लाख 2.5 लाख रुपया इन्हें ओन चलता पे। 4 महीने 5 महीने बाद ट्रैक्टर देने पैन। जट्टें की हालत खराब है, जट घेर नहीं सकते, जट रोने वदन, वो आदन असा परेशान है। ई वजह से ट्रैक्टर महंगे थी चुके हैं। जी बिल्कुल, ट्रैक्टरों की कीमत में जो है वो मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और इस को भी ना तो कोई नोटिस लेने वाला है और ना ही कोई कंट्रोल करने वाला है। कीमतें मुसलसल इजाफा होने से गंदम की काश्त, जो हाल ही में अब गंदम की काश्त का आगाज होने का, वो मुतासर होने का कीमतों को पर लग चुके हैं। रजा मलिक, आपका शुक्रिया। रुक करें मियांवाली का, जहां पर अदरक 170 रुपए किलो महंगी हो गई है। मार्केट में अदरक 450 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी है, जिस पर शहरी को कहना है कि दुकानदार कहते हैं मंडी में अदरक महंगी मिल रही है। बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर बताएगा, दुकानदारों को कोई मौके सामने आया इस पर? बिल्कुल, बात की जाए अगर महंगाई की तो कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको गरीब आदमी हाथ लगा सके या खरीद सके। अदरक की बात की जाए तो उसका जो सरकारी रेट है वो है 280 रुपए, जबकि मार्केट में अदरक 450 रुपए फी किलो के हिसाब से बेची जा रही है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे इस वाले से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, इतनी महंगी है अदरक, क्या कहेंगे इस वाले? ये दुकानदार से पूछते हैं तो दुकानदार यही कहते हैं मार्केट महंगी है, मंडी महंगी है,
टमाटर देख लो, मुर्गी देख लो, कोई चीज भी सस्ती नहीं है। लिस्ट में और रेट है, दुकानदार अपनी मर्जी कर रहे हैं। अगर दुकानदार को ये बोलते हैं वो आते मार्केट में मंडी में महंगी है जी। रेट लिस्ट में और रेट हैं, दुकानदार अपनी मर्जी कर रहे हैं। एक और शहरी भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप इस सवाल? जी सर, महंगाई के बारे में अगर बात की जाए तो पिपला पूरे पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भिंडी, आलू और हर चीज़ का बहुत ज़्यादा रेट है। रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो आलू 100 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, नया आलू 100 रुपये किलो और पुराना आलू 50 रुपये किलो। भिंडी की बात की जाए और गोभी की बात की जाए तो 100 रुपये किलो के हिसाब से बिक रही है। दिहाड़ीदार और गरीब तबका अगर देखा जाए तो 300 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से अगर वो दिहाड़ी कमाता है तो 200 रुपये की सब्जी दिन की बनती है। घी की बात की जाए तो 330 रुपये किलो, चीनी 90 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। मार्केट में किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। मार्केट में पेट्रोल 140 रुपये बिक रहा है। और अगर बात की जाए अदरक की तो अदरक 450 रुपये, 400 रुपये किलो बेच रहे हैं। अब लिस्ट में 350, 250 रुपये रेट लिस्ट आ रहा है। अब देखा जाए तो रेट लिस्ट के मुताबिक अगर ये लोग बेचते हैं तो ये कहते हैं कि मंडी में हमें 420 रुपये मिल रहा है अदरक। तो बात की जाए किसी के बारे में बात की जाए तो जिससे पूछा जाए वो कहता है कि हमें महंगाई की भेंट चढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने से दुकानदार कहता है कि मंडी से जो है माल महंगा मिल रहा है, इसलिए हम महंगा बेच रहे हैं। कीमतों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। अख्तर, आपका शुक्रिया। उधर महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर एलपीजी बम भी गिरा दिया गया। एलपीजी के रेट आसमानों तक पहुंच गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली हसन। अली, बताएगा क्या कीमत चल रही है एलपीजी की आजकल? बिल्कुल, एलपीजी का रेट जो है आसमानों तक पहुंच चुका है। जो 200 रुपये किलो एलपीजी मिल रही थी, आज 220 रुपये किलो मिल रही है। और जो गरीब लोग हैं वो शदीद परेशान हैं। उनका हुकूमत से मुतालबा यही है कि एलपीजी रेट जो हैं कम किए जाएं। इसमें मेरे साथ शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पर गैस लेने आए हुए हैं। मजीद उनसे जाते हैं। ये बताइएगा कि गैस का रेट बढ़ गया है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है और अपील है कि मेहरबानी करके शफकत करें। पहले जो हम गैस 200 में लेके जाते थे, अब 220 रुपये में लेके जा रहे हैं। इसकी वजह से, महंगाई की वजह से इंतहाई टेंशन है। बिलों में इतनी जो ना रेट ज़्यादा है, घर के अखराजात वैसे बहुत ज़्यादा है। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि मेहरबानी करें, एलपीजी है या पेट्रोल है या इसके महंगाई पर तवज्जो दे। और हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि हुकूमत से अपील है इन चीज़ों में सस्ता किया जाए अपना रेटों में। जी बिल्कुल, शहरियों को यही कहना है कि इनके रेट कम किए जाते हैं। मजीद एक और शहरी मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। ये बताइएगा एलपीजी रेट जो महंगी हो गई है, आप हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? जी अस्सलाम वालेकुम। ये 200 रुपये हम पहले लेकर जाते थे, तो अब महंगाई की वजह से इतने तंग हो गए हैं कि पहले तो हम 200 रुपये में लेते थे, अब 220 रुपये हो गया है। अब मेहरबानी हुकूमत से यही मुतालबा हमारा, कम करें इसका रेट और आवाम को कोई रिलीफ दी जाए। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना था कि एलपीजी के रेट कम किए जाएं और भी कोई रिलीफ दिया जाए। सही अली हसन, आपका शुक्रिया। रुख करेंगे मुल्तान और मियांवाली के दरमियान नई ट्रेन सर्विस शुरू करने की फिजिबिलिटी बन गई है। सांथल एक्सप्रेस को दोबारा चलाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। बात करेंगे मौसम से। मौसम बताएगा कब तक ट्रेन फाल हो जाएगी? जी, मुल्तान रेलवे डिवीजन एक बड़ा डिवीजन है और इस डिवीजन में बहुत सारे इलाके आते हैं। ख़ासतौर पर साउथ पंजाब इसमें फोकस एरिया है। हमारे साथ इस वक्त मुल्तान रेलवे डिवीजन के सरबराह डीएस रेलवे मुल्तान डिवीजन नवीद मुबशर चौधरी साहब हैं। हमारी जो पहली डीएस स्पेशल थी वो यहाँ से खानेवाल, शोरकोट, झंग, शाहीनाबाद तक की थी। उसमें मैं तमाम स्टेशन मैंने विजिट की और वहाँ पब्लिक से मैंने मिला हूँ। वहाँ पे एक चीज़ मैंने बड़ी वाज़ह तौर पे देखी कि जो रोड नेटवर्क है यहाँ तो वो है ही नहीं, अगर है तो वो बहुत ही ख़राब है। और इससे पहले यहाँ पे एक लोकल ट्रेन सांदल एक्सप्रेस चलती थी। सांदल एक्सप्रेस डिसकंटिन्यू हुई थी जब कोरोना आया, उस वक्त ट्रेन को हमने डिसकंटिन्यू फेजेस में किया। 13 कोचेस के साथ 4 की बजाय 12 कोचेस से सांदल एक्सप्रेस चले और वो रोड फेयर से कंपेटिटिव हो और ताकि पूरी तरह उसकी फिलिंग हो और रेलवेज को भी फ़ायदा हो और पब्लिक को एट लार्ज उसका फ़ायदा हो। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होगा? स्टार्ट वो मुल्तान से चलेगी सुबह 6 बजे और वो शोरकोट से
झांग से शाहीनाबाद से होते हुए सरगोदा पे टर्मिनेट होगी। बिल्कुल, मिल्लत एक्सप्रेस के रूट चेंज होने के बाद सरगोदा के लिए ट्रेन भी नहीं थी, लेकिन रेवेन्यू के साथ साथ अवामी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए ये प्लान है। लेकिन ओवरऑल अच्छी खबरें आ रही हैं रेलवे की तरफ से अवाम को सहूलत मैसर होगी। मोहसिन, आपका शुक्रिया। लोधरा में महकमा सेहत की लेडी हेल्थ वर्कर्स ने काम छोड़ दिया है और सीईओ हेल्थ ऑफिस के बाहर एहतजाज के लिए जमा हो गई हैं। बात करेंगे मुश्ताक भुट्टा से। मुश्ताक, बताएगा काम क्यों छोड़ा गया? जिला भर के मुख्तलिफ रूरल और बीएचयूज पर काम करने वाली लेडी हेल्थ वर्कर्स इस वक्त फैमिली अस्पताल में जमा हैं। एहतजाज किया जा रहा है हेल्थ इंतजामिया के खिलाफ। इनके क्या मुतालबात हैं, उन्हीं से बात करेंगे। आप बताएं, क्या मुतालबात हैं? सर, हमारे ये मुतालबात हैं कि हमें कोरोना की इजाफी ड्यूटियां हमारी लगाई गई हैं बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी हमें तहफ़्फ़ुज़ दिए हुए, कोई सिक्योरिटी दिए हुए, किसी मुआवजे के बगैर। जबकि अक्सर अजला में डेंगू, पोलियो और कोरोना का अलग से फील्ड स्टाफ भर्ती किया हुआ है, जहां पर HR की कमी है। और डिस्ट्रिक्ट लोधरा में हमेशा से ही HR की शदीद अशद ज़रूरत के बावजूद भी इस बात को नज़रअंदाज किया गया है और भर्ती अमल में नहीं लाई गई कि जी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और जो मौजूद स्टाफ है अवेलेबल, उनके ऊपर कई गुना जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ाकर उनसे काम लिया जा रहा है बार बार, जो कि सरासर ज्यादती है। और हम डोर टू डोर अपने फराइज पहले भी अदा करते रहे हैं, अब भी हम करेंगे, लेकिन किसी टर्म्स कंडीशन के तहत कि हमें महकमाना कोई तहफ़्फ़ुज़ मिले, हमारे महकमाना फराइज की अदायगी के दौरान हमारे हेल्थ वर्कर्स का जो जायज़ हक है हमें वो दिया जाए। और इसके अलावा स्किल्ड और बाकी जो दीगर हमारी मुहिमात हैं उसमें उनको नाअहल कहकर साइड पर कर दिया जाता है। जो मुआवजे वाली कंपेन और बिला मुआवजा जो भी फ्री की ड्यूटीज़ लेनी हो उसमें LAWs को सर फहरिस्त रखा जाता है। और इस वक्त भी जो दूर दराज के मकामात में टीमें बनाकर ड्यूटी लगाई गई है वो बगैर किसी सवारी के, बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी टीम मेंबर के, बगैर किसी प्लानिंग और ट्रेनिंग के वो की गई हैं। वो कैसे करेंगी? कैसे पॉसिबल है उनके साथ ये काम लेना? और अपनी इस्तात से बढ़कर कोई बंदा भी काम नहीं कर सकता होता। ये कहाँ का इंसाफ है इस तरह के डबल काम लेना उनसे? जी बिल्कुल, ओवर ड्यूटी और सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात समेत मुतालबात हैं तहफ़्फ़ुज़ात WOs के, जो आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर एहतजाज का। सही मुश्ताक, आपका शुक्रिया। बुरावाला में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का पहला इजलास हुआ है जिसकी सदारत कन्वीनियर मोहम्मद इफ्तिखार भट्टी ने की है। इजलास बारे तफसीलात बता रहे हैं काशिफ चौधरी। बिल्कुल, बल्दियाती नुमाइंदों की बहाली के बाद बल्दिया का पहला इजलास जो है वो कन्वीनर इफ्तिखार भट्टी साहब की जो अनाउंसमेंट पर जो है वो मुनक़द हुआ। आज अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा ये पहला इजलास हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ जस्टिस गुलजार हुसैन साहब की वजह से मुमकिन हुआ है। तो जिस तरह बल्दियात बहाली के हवाला से ये एक आनी अदारा था, इस पर एक शब खून मारा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल किया है। तो ये अवामी नुमाइंदे इंशाअल्लाह ताला पहले भी जो बल्दियात का जो रोल होता है ग्रास रूट लेवल पे होता है, लोगों के मसाइल जितना ये बेहतर समझते हैं शायद पार्लियामेंटेरियन उतना बेहतर ना समझते हों, क्योंकि इनका राब्ता, इनका वास्ता गली में, मोहल्ले में, बाजारों में हर बंदे से होता है। और उन मसाइल की निशानदेही जो वो कर सकते हैं बेहतर तरीके से, और ये अदारे जितने बेहतर तरीके से उनको हल कर सकते हैं, शायद ही कोई और अदारा उनको बेहतर तरीके से हल कर सकता हो। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में ये हमारी जो फंड्स पड़े हैं उनको हम कानूनी तरीके से, ये हमारा एक आईनी हक है, कानूनी हक है, इस हाउस की अथॉरिटी है, उसको हम इस्तेमाल करते हुए अपने बल्दिया के तमाम काउंसलर्स उनको ये बराबर तौर पर तकसीम करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले वक्तों में जो बुरेवाला में जो तरक्की का तसलसल रुका था वो शुरू हो जाएगा और आप लोग इंशाअल्लाह ताला इस सब दोस्त अहबाब बुरेवाला के शहर से मुस्तफीद हो सकेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ से बुराला का तसल्सल रुका था वहाँ से शुरू होगा और उन्होंने चीफ सही काशिफ, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला के दौरे के मुतालिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की खानेवाल आमद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मरहूम MPA निशात डाहा के घर आमद हुई है, जबकि लवाहिकीन ने ताज़ियत भी की है और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वैक्सीन काउंटर का इफ्तिताह कर दिया है। मज़ीद बात करेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। जी मोहम्मद नदीम, बताएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार खानेवाल के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मरहूम MPA निशात अहमद खान डाहा के लवाहिकीन से ताज़ियत की है और उसके बाद वो वैक्सीन सेंटर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बाकायदा उसका मुआयना भी किया, इफ्ताह भी किया। मज़ीद हम बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से। सर, खानेवाल के दौरे पर पहुंचे हैं, ताज़ियत भी की है और साथ वैक्सीन सेंटर का मुआयना भी क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं पहले तो विहाड़ी गया, वहाँ फातिहा खानी की और उसके बाद मैंने वैक्सीनेशन सेंटर का वहाँ भी मुआयना किया, विज़िट किया, इफ्तिताह किया उसका। और अभी मैं फातिहा MPA साहब जो थे हमारे निशात खान डाहा साहब
जो मेरे बुजुर्ग थे, तो उनको उनकी फातह खानी के बाद अभी यहाँ खानेवाल आपका जो सेंटर है इसका अभी हमने विज़िट किया और देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सेटिस्फैक्ट्री है मामलात हैं यहाँ पे। और ये मुहिम इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ दिनों तक पूरे पंजाब में हमने घर घर जाके लोगों की वैक्सीनेशन करनी है, तो इंशाल्लाह इसे जो कोरोना होगा वो कंट्रोल। महंगाई के सही मोहम्मद नदीम, आपका शुक्रिया। कुछ बात करें डॉलर की ऊंची उड़ान की। डॉलर की रफ्तार को ब्रेक नहीं लग रही। इंटरबैंक में डॉलर 43 पैसे महंगा हो गया है, जबकि स्टेट बैंक इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपए से भी तजावुज कर चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपए 43 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ है। आपको बता रहे हैं डॉलर की ऊंची उड़ान बदस्तूर जारी है और इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपए से भी तजावुज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपए 43 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ है। दूसरी जानिब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एहसानुल हक का गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का दौरा हुआ है। दौरे की तफसीलात बता रहे हैं आमिर डोगर। जी बिल्कुल, गर्ल्स कॉलेज मुजफ्फरगढ़ में हम मौजूद हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एहसानुल हक साहब ने गर्ल्स कॉलेज का विजिट किया और रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप भी स्टूडेंट्स को दी गई है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि विजिट के दौरान आपने तालबात से भी मुलाकात की और स्कॉलरशिप्स के चेक्स भी तकसीम की। जी, ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप के हवाले से। इस हवाले से जितना भी डाटा था, इनकी स्क्रूटनी जो है, ये दो किस्म के स्कॉलरशिप है। एक ये है कि ये नीड बेस्ड हैं, जिन बच्चों की इकोनॉमिक कंडीशन उनकी फैमिली की कुछ इस तरह है कि अगर उनकी जो ज़राई लैंड है वो 5 एकड़ से कम है और 5 मरले से कम उनका कोई अर्बन प्रॉपर्टी है या हाउस है, और दोनों फादर और पेरेंट्स की इनकम 25,000 से कम है, तो गवर्नमेंट ने, और वो गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट स्कूल के पढ़ने वाले हो जो है, मैट्रिक उन्होंने किया हो, तो उनको 25,000 के हवाले से ये एक स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। तो उस हवाले से आज प्रिंसिपल साहिबा ने यहाँ एक तकरीब रखी हुई थी, तो वहाँ उन बच्चियों को ये दिए गए हैं। तो गवर्नमेंट का ऑलरेडी भी मैं पहले बता रहा था कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि किसी भी हवाले से वो जो स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी जो जिनको इकोनॉमिकली या किसी भी हवाले से अपलिफ्ट करना हो, तो वो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसियाँ लाती रहती है, तो वी अप्रिशिएट दैट। जी बिल्कुल, आज के इस इवेंट का सही आमिर डोगर, आपका शुक्रिया। नासिर मोहम्मद नवाज शरीफ जरी यूनिवर्सिटी मुल्तान में पोलियो के आलमी दिन के हवाले से सेमिनार और वाक का एहतमाम किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अली रियाज से। जी अली, बताएगा। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में आज वर्ल्ड पोलियो डे के मुनासबत से जो है सेमिनार का इनेकाद किया गया और वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाए, जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो पोलियो के केसेस एक तरह से जो काफ़ी हद तक कमी आती जा रही है और जो पूरी दुनिया में पोलियो का एक मसला जो ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जहाँ पर ये तमाम मसाइल चल रहे हैं। इसी सिलसिले में आज ये सेमिनार का इनेकाद किया गया है, जिसमें क्या क्या बातें हैं और क्या किस तरह से हम पोलियो से फाइट कर सकते हैं। तो आज जो हमारे खुसूसी में समझ लो सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे वर्ल्ड पोलियो डे के हवाले से? सेमिनार की अहमियत आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो सेमिनार है, एक तो अवेयरनेस सेमिनार है, और आपने देखा होगा कि वर्ल्ड में जो पोलियो के केसेस हैं वो रिड्यूस होकर 1 पे आ गए हैं। एक केस पाकिस्तान में और एक ही अफगानिस्तान में हुआ है। तो हम बहुत करीब हैं कि हम इस मौजी मर्ज से निजात हासिल कर लेंगे। जी, दो चीज़ सबसे अहम है, एक तो पोलियो के कतरे पिलाए जाए, दूसरी मेल न्यूट्रिशन का जो मसला है उसके लिए जो न्यूट्रिशन है हमारे जो खुराक है उसका खास ख्याल रखा जाए। तो आज के सेमिनार का मकसद ये है कि जहाँ पूरी दुनिया ने पोलियो से छुटकारा हासिल करे, तो वहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान। सही अली रियाज, आपका शुक्रिया। और इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।